This will go until 8 o'clock, right? Yes, sir. Yeah. So Yeah. attendees are still joining. So let me start with the introduction, sir. Sure. So good evening, all the attendees. This is Ajinkya Dalal. I welcome you for the today's session of Cover Page Cover Story. I am the best mom. We are committed to winging the aspiration of the mothers. Though I am the best mom, title itself is quite aspirational, and every mother will envy that throughout their life, and they would certainly want somebody else to tell them that they are best mom. And we believe every mother is best. And this particular initiative of Cover Page Cover Story is to answer your questions beyond medicine. At times we visit doctors, pediatricians, and different super specialists, but and we often talk about illness. This initiative is to talk about healthcare, to talk about wellness. And today's topic is to how to improve the height of your child. And this topic, I believe, in India, the average height is quite less compared to the other countries. So this will be a very close topic. I personally would like to learn about this because I would have been very happy if my height would have been 2 inches taller than what I am. So we have the guest speaker today, and let me have the privilege to introduce you, Dr. Ganesh Jewalikar. So Dr. Ganesh Jewalikar is a pediatric endocrinologist. He's a principal consultant with Max Healthcare Saket, New Delhi, and Gurugram as well. Dr. Ganesh is a secretary to and treasurer to Indian Society of Pediatric and Adolescent Endocrinology for 21 and 22. He has close to 18 PubMed index publications, and he's the reviewer of Indian Pediatrics Journal as well. So, having more than 12 years of clinical experience in pediatric endocrinology and diabetes, he's there today to answer all your questions and doubts. And with him, I would certainly welcome again Dr. Anuj sir. He's there with us for throughout the series, and his experience and his interaction with the parents and the frequently asked questions. I believe I have never seen such an integrity and detailing about the subjects which we are talking every Thursday. So I would certainly invite Dr. Anuj sir to take the things ahead, and he'll be the right person to talk about the subject then. Thank you, sir. थैंक यू अजिंक्य, थैंक यू. एंड हाइट हमारे देश के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न रहता है पेरेंट्स का कि उनका बच्चा सही ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है और उसकी हाइट कैसे बढ़े. एज सच अगर हम डाटा देखें तो जो टॉलेस्ट पर्सन है, एवरेज हाइट जो टॉलेस्ट पर्सन की वो नीदरलैंड में है जहाँ पे 6 फीट प्लस है. इवन अमेरिका के अंदर जो एवरेज हाइट है वो 5 फुट 9 इंच है मेल के लिए एंड 5 फुट 4 इंच है फीमेल के लिए. इंडिया के अंदर वो हाइट काफी कम है, 5 फुट 4 इंच है मेल के लिए एवरेज हाइट और 5 फुट के करीब है फीमेल्स के लिए. तो हमारे यहाँ 1 इंच भी बहुत मैटर करता है. जैसे अभी अजिंक्य ने कहा कि मेरी 2 इंच हाइट और बढ़ जाती, तो हम लोग क्योंकि हमारी हाइट कम है इधर इंडिया के अंदर खासकर, तो हर एवरी इंच मैटर्स टू अस. तो अगर हम बिगनिंग से ही इन चीज़ों पे ध्यान दें तो हम अपना ग्रोथ पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं. एज ए डॉक्टर हमें लगता है कि हर एक बच्चे का एक ग्रोथ पोटेंशियल है, उनके पेरेंट्स के हिसाब से, उनके जीन्स के हिसाब से, उस कम्युनिटी के हिसाब से जहाँ वो रह रहे हैं. इवन थोड़ा थोड़ा फर्क चेन्नई में, बॉम्बे में और मेरठ में, दिल्ली में भी थोड़ा थोड़ा फर्क है. तो हाइट जीन्स के अलावा मल्टी फैक्टोरियल है, और जब तक आप अपना न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं रखेंगे तो आप अपना जेनेटिक पोटेंशियल नहीं पहुंच सकते. और जिस तरह से आजकल जंक फूड चल पड़ा है वो बिल्कुल भी बैलेंस डाइट नहीं है. उसको
जब तक आप अपने बच्चों की बैलेंस डाइट नहीं रखेंगे तो वॉट एवर हाइट दे आर गेनिंग दे विल नॉट गेन अप टू द मैक्सिमम। नाउ अब मैं डॉक्टर गणेश को प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। एंड डॉक्टर गणेश जो कि बहुत सीनियर पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, आज मैं उनसे ग्रोथ पे बात करूंगा। वेलकम डॉक्टर गणेश। Thank you, sir, and thank you, Ajinkya, for introducing me. And I'm really happy कि मुझे ये मौका मिला है कि आप लोगों से मैं डिस्कस करूं कि बच्चों की ग्रोथ के बारे में। एंड अनुज सर का भी इस क्षेत्र में आई थिंक मोर देन 25 ईयर्स 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड उनका ग्रोथ में खास इंटरेस्ट है। And he is one of the few pediatricians that I have seen who focus on growth right from I mean birth, or maybe before birth. If he gets the chance to access mothers before birth, then probably he would also advise those mothers about the nutrition. Yes, I'm very happy to be here, and thank you so much for inviting me. Right. जैसा कि डॉक्टर गणेश हम ये देखते हैं कुछ क्लिनिक्स में बच्चों का हेड सर्कमफ्रेंस लिया जाता है, वेट लिया जाता है, लेंथ लिया जाता है और उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करी जाती है। डॉक्टर गणेश, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ग्रोथ के रिलेशन में? जो है सो है। एक्चुअली अगर हम बच्चों को देखें और बड़ों को देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बायोलॉजिकल फर्क है जो बच्चों में है कि उनकी ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है चाइल्डहुड और एडोलेसेंस का। एंड इसको नापने के या इसको देखने के कई सारे पैरामीटर्स या कई सारे दंडमाप जो हम बोलते हैं वो है, उनमें से है हाइट, वेट, हेड सर्कम्फरेंस, एंड कुछ और चीजें भी होती है जैसे कि मिड आर्म सर्कम्फरेंस वगैरह। तो ये सारे जो चीजें इसलिए हम नापते हैं क्योंकि ग्रोथ एक आईना है। और ये किसी भी कई बार हम देखते हैं कि लोग बच्चे ठीक है या नहीं है, इसके लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं, इसके लिए सीटी स्कैन, एक्सरे या कुछ कुछ चीजें, कई सारी चीजें करवाती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर जो बच्चे की हेल्थ का और बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की जो न्यूट्रिशन या किसी भी चीज में पालन पोषण में जो एडिक्वेसी दिखाने का सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ग्रोथ होता है। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी बच्चे की जन्म से लेके थ्रू आउट उनकी जो ग्रोथ की पीरियड है उस दौरान कई सारी पैरामीटर्स जो है वो मॉनिटर हो। जैसा कि आपने कहा कि हेड सर्कम्फरेंस चेक होता है, पहले 1-2 साल में बच्चों की लंबाई चेक होती है, और उसके बाद फिर बच्चों की ऊंचाई मतलब कि हाइट चेक होती है, और वजन जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब चेक होता है। और इसको चेक करने के साथ साथ इन सब का एक ग्राफ या चार्ट मेंटेन करना ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। आई एम श्योर कि हम इस बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे थ्रू दिस सेशन। आपने बताया कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसका सिर का नाप लेना चाहिए, लंबाई देखनी चाहिए उसकी, लिटा के रिकमेंड हाइट या लंबाई कहते हैं उसको, या उसका वेट मेजर करना चाहिए। कोई डॉक्टर गणेश कोई एक टेस्ट कंपलसरी है जो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को, ग्रोथ को बहुत प्रभावित करता है और जिसकी इंसिडेंस भी 2000 या 2500 बच्चों में एक की है, तो क्या वो टेस्ट भी सब बच्चों का पैदा होते ही होना चाहिए और किस दिन होना चाहिए और कब उसे मुकम्मल मानना चाहिए? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब बच्चे की जो ग्रोथ होती है एट बर्थ, जब पैदा हुआ है बच्चे की ग्रोथ डिपेंड करती है कि मदर को कितना अच्छा न्यूट्रिशन मिला है। बट जब बच्चा, अब डिलीवरी हो गई है, बच्चा पैदा हो गया है, उसके बाद आगे की जो एक्स्ट्रा यूटेराइन उसकी लाइफ है, उसमें बच्चों की पालन पोषण और न्यूट्रिशन के साथ साथ कुछ बायोलॉजिकल चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इन सब में एक थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड अपने नेक में, गले में, यहाँ पे बटरफ्लाई के शेप की एक थायराइड ग्लैंड होती है जो कि हर बच्चे में उसका होना और उसका जो हार्मोन बनता है। हार्मोन्स बेसिकली ऐसी चीजें हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश पहुंचाने का अपने बॉडी में काम करती है। सो थायराइड का जो हार्मोन होता है वो यहाँ से निकल के बॉडी के हर एक पार्ट्स में, और इस जहां तक कि हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो जो हमारे बोन्स है वहां पे ग्रोथ का संदेश लेके जाता है। और ये हार्मोन अपनी शारीरिक ग्रोथ एज वेल एज ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सो थायराइड का हार्मोन जो है न्यूबॉर्न बेबी में चेक होना लेवल बहुत जरूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी 95% बच्चों में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते।
जिनको थायराइड की कमी है, इस थायराइड की कमी को पैदाइशी जो न्यूबॉर्न बेबीज है, जैसे कि आप सर ने बताया कि 2000 से 2500 बेबी में से एक बच्चे को थायराइड हार्मोन की कमी होती है, और थायराइड हार्मोन की कमी की कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। तो हाइपोथायराइडिज्म जो है, ये 95%, लगभग 90 से 95% बेबीज में एट बर्थ इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, मतलब ये आम बच्चों के जैसे दिखाई देते हैं। और बाय द टाइम इसके लक्षण दिखने लगे, उस टाइम तक अगर हम इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसमें ब्रेन को ऑलरेडी नुकसान पहुंच चुका होता है, जो कि बाद में भर के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हर जो बच्चा पैदा हुआ है, चाहे वो किसी भी वजन का हो, चाहे वो किसी भी कितने भी महीनों की प्रेगनेंसी के बाद पैदा हुआ हो, या फिर कहीं भी पैदा हुआ हो, तो हर जो बच्चा पैदा है उसकी थायराइड की जांच होना, और एक बहुत सिंपल सी जांच है TSH नाम की, जो कि या तो नाल का जो ब्लड होता है उसको लेके की जा सकती है, या फिर एक हल्का सा छोटा सा प्रिक, जैसे हम शुगर चेक करने के लिए जैसे प्रिक फिंगर पे करते हैं, वैसा ही एक हील पे छोटा सा प्रिक, लगभग पैदा होने के 48 से 72 घंटे के बाद अगर हम करके इसकी जानकारी पा सकते हैं। और अगर 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, तो फिर बच्चा शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी न्यूबॉर्न बेबी की थायराइड की जांच की जाए, जो कि TSH, और बहुत सस्ती जांच है, इसका इलाज भी बहुत सस्ता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी तक ये कंपलसरी नेशनल प्रोग्राम नहीं है, सो धीरे धीरे इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है। तो जब तक कि ये कंपलसरी न बने, तब तक हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि ये एक जरूरी चीज है। तो डॉक्टर गणेश ने बताया कि जो बच्चे इवन नॉर्मल माओ के बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनको थायराइड नहीं है, उन बच्चों का भी थायराइड टेस्ट होना है। दूसरी बात डॉक्टर गणेश ने बताई है कि जो बच्चे देखने में नॉर्मल लग रहे हैं, जरूरी नहीं उनको थायराइड का कोई फीचर दिख रहा हो, इवन देन उन बच्चों का तीसरे दिन थायराइड टेस्ट होना बहुत जरूरी है। अब कुछ बच्चे मदर फीड ले रहे हैं, कुछ बच्चे टॉप फीड ले रहे हैं। अब टॉप फीड में भी तरह तरह के उनके कल्चरल बिलीफ्स हैं। देखिए, मदर फीड के जैसा तो कुछ नहीं है, मदर फीड तो बेस्ट मानी जाती है। और मदर फीड को देते देते अगर हम ये जो ग्रोथ चार्ट बनाते हैं, अगर उस पर हम बच्चे को मॉनिटर करें, तो पहले 3 महीने जीवन के सबसे ज्यादा ग्रोथ के हैं। इतनी अच्छी ग्रोथ पूरे जीवन में दोबारा नहीं होती, या तो यूट्रस के अंदर होती है बहुत जबरदस्त ग्रोथ, या यूट्रस से बाहर आके पहले 3 महीने के अंदर होती है। तो अगर आप जो भी दूध पिला रहे हैं, और उसके साथ अपने डॉक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं, वेल बेबी चेकअप के लिए अगर आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास, 15 दिन बाद जा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, तो डॉक्टर आपके बच्चे की एंथ्रोपोमेट्री यानी कि उनके सिर का नाप, लंबाई, वजन देखते हैं, और देखते हैं कि कहीं कुछ उसमें फॉल्टरिंग तो नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, या जो उसका बच्चे का न्यूट्रिशन, क्योंकि उस एज पे थायराइड के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रोथ का फैक्टर है वो न्यूट्रिशन है, कहीं उसका न्यूट्रिशन कंप्रोमाइज तो नहीं है। ट्रू। तो उसके साथ वो उसको प्लान करते हैं। और हम सभी को रिकमेंड करते हैं कि आप माँ का दूध पिलाएं, और किसी कारण अगर माँ का दूध अवेलेबल नहीं है तो एनरिच काउज मिल्क फार्मूला दें। एनरिच काउज मिल्क फार्मूला होता है कोई भी डब्बे का दूध जो भी मार्केट में आता है, तो दें। मगर सबसे पहले, ऐसी बहुत कम माएँ होंगी जिनको दूध नहीं आएगा, तो अगर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आपका दूध अवेलेबल ना हो। अब जब बच्चा आपका 1 महीने का हो जाता है, 2 महीने का हो जाता है, तो आपकी ग्रोथ मॉनिटर करते हैं। जो उसका बर्थ वेट है वो अपने बर्थ वेट का ट्रिपल हो जाता है 3 से 4 महीने के अंदर। जनरली फिर 6 मंथ पे वीनिंग का टाइम आ जाता है। अब वीनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप बच्चे को करेक्ट वीनिंग करा रहे हैं, और खासकर 6 महीने से लेके 12 महीने तक, उसका टेस्ट प्रेफरेंसेस का टाइम है, टेस्ट बड को एक्लेमेटाइज करने का टाइम है, चीज़ों को नई नई टेस्ट को समझने का टाइम है। अगर उस दौरान आप बच्चे को सिर्फ टेस्टी फूड जो आप खुद खा रहे हैं, आलू है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, ये खिलाएंगे, तो आपका बच्चा कभी अच्छी न्यूट्रिशन की तरफ नहीं चलेगा। तो जो पेरेंट्स 6 महीने से लेके 12 महीने के बीच में न्यूट्रिशन पे बहुत फोकस करते हैं और डॉक्टर की बताई हुई एडवाइस पे चलते हैं, उनके बच्चे वाकई बहुत अच्छा करते हैं। डॉक्टर गणेश, क्या एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देके क्या बच्चे को लंबा करा जा सकता है? क्योंकि बहुत सी माओं को कंपैरिजन करने की आदत होती है। जब वो अपने बच्चे को देखती हैं, बहुत सी क्या सभी को होती है, जब वो अपने बच्चे को देखती हैं उसकी हाइट उन्हें कम, दूसरे बच्चे से हमेशा ही कम लगती है। जनरली हेड टू हेड कंपैरिजन नहीं होता, वो कंपैरिजन होगा 6 महीने के बच्चे का 5 साल के बच्चे से, Yeah. या उसके कजिन से।
तो इस बारे में कुछ आप बताइए, कैसे करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए? या आई थिंक न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारी जो ग्रोथ को ऑप्टिमाइज करने के लिए। और जैसा कि आपने बोला कि फर्स्ट 6 मंथ्स में ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड उसके बाद जो है अप्रोप्रिएट जो सॉलिड्स है एक स्टेप वाइज जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं धीरे धीरे करके, एंड लार्जली ये चीजें वही चीजें होनी चाहिए जो आपके घर पे आमतौर पे खाई जाती है, बट वो जो कि हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट बच्चे को दे सके। हालांकि हमें जो ये अक्सर ये फीलिंग आती है कि प्रॉब्ली मेरा बच्चा ठीक से नहीं ग्रो कर रहा है, या फिर मेरा बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा है, या फिर उसका बच्चा इतना बड़ा हो गया मेरा बच्चा ऐसा रह गया। इसको देखने का सबसे एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव माने कि ये केवल आपकी फीलिंग पे डिपेंड नहीं है, इसको देखने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है ग्रोथ चार्ट। सो जब भी आप क्लिनिक में जाते हैं और आपका ग्रोथ चार्ट अगर प्लॉट होता है, और अगर आपका बच्चा, ग्रोथ चार्ट बेसिकली एक ग्राफ है जो आपको कि बच्चे की हाइट वेट टाइम टू टाइम कैसे कितनी रेट से इंक्रीज हो रही है ये आपको दिखाता है। अगर ग्रोथ चार्ट पे आपका बच्चा नॉर्मली ग्रो कर रहा है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपको पता चलने का कि क्या बच्चा ठीक से खा रहा है कि नहीं खा रहा है। इसके अलावा और कई सारे पैरामीटर्स है कि बच्चा हर बच्चे में कैपेसिटी होती है समझने की मुझे भूख लगी है और मेरा पेट भर गया है। तो हमें बहुत ज्यादा मतलब हमें बस जो ये क्यूज है उसको समझने की जरूरत है। और अगर इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो हम अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं बच्चे की खाने की क्वांटिटी क्या है, और उस चक्कर में जैसे कि बच्चा अगर बिल्कुल रिफ्यूज कर रहा है खाना, उसका पेट भर गया, वो फेंक दे रहा है, उसके बाद भी वो जबरदस्ती उतना खत्म करने के चक्कर में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। एम आई राइट डॉक्टर अनुज? यू आल्सो एक्सपीरियंस दिस थिंग? एक्चुअली खत्म होने का मैटर नहीं है, वो पेरेंट्स चाहते हैं, क्योंकि उनका जो फोकस है अपने बच्चे से ज्यादा दूसरे के बच्चे पे है। हाँ। कीप सो कंपेयरिंग, उन्हें लगता है ये छोटा रह जाएगा, ये कमजोर है, और आवर्स के हिसाब से, घंटों के हिसाब से वो उसे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक कोयरसिंग एटमॉस्फेयर बन जाता है, जैसे कुश्ती हो रही हो, और कुछ समय बाद बच्चे विड्रॉल में चले जाते हैं, वो खाना ही नहीं चाहते अपने खाना पेरेंट्स। नहीं चाहते, या एंड दूसरा ये बात कि जितना पहले साल में ग्रोथ होती है, पहले साल में जितनी लगभग 25 सेंटीमीटर हाइट किसी भी बच्चे की बढ़ती है, दूसरे साल में ये आधा हो जाता है। दूसरे साल में लगभग 12 सेंटीमीटर के करीब हाइट बढ़ती है, उसके अगले साल में और कम हो जाता है, 7-8 सेंटीमीटर की बढ़ती है, उसके आगे और कम हो जाता है। तो बच्चे की जो नॉर्मल ग्रोथ की स्पीड है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है वैसे थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, और लगभग 3-4 साल के बाद से लेके प्यूबर्टी मतलब कि जब हार्मोनल ग्रोथ होने की उम्र है तब तक बच्चा एक 4-5 सेंटीमीटर साल में बढ़ते रहता है। लेकिन ये जो 2 से 5 वाली उम्र है, टॉडलर्स जिसको बोलते हैं, इसमें दो चीजें होती है। एक तो ग्रोथ की स्पीड पहले 2 साल के कंपैरिजन में कम हो गई, इसकी वजह से बच्चे की रिक्वायरमेंट या बच्चे की डिमांड जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इस फेज में माओ को अक्सर लगता है कि बच्चा बिल्कुल सडनली मतलब खाना कम खा रहा है बहुत ही, उसको हम मतलब पता नहीं क्यों ऐसे हो गया है एंड ऑल। सो इसमें सबसे मैंने जैसे कि मैंने बोला कि ग्रोथ चार्ट एक सबसे ऑब्जेक्टिव तरीका है कि अगर आपका बच्चा पैरेलल टू नॉर्मल ग्रो कर रहा है, नॉर्मल लाइंस पे ग्रो कर रहा है, तो इन दैट केस यू कैन बी रीअश्योर्ड दैट चाइल्ड इज बीइंग फेड एडिक्वेटली। एंड दूसरा कि इसी उम्र में खाने का डिसिप्लिन लगना भी इम्पोर्टेंट है, कि मतलब बच्चे को खाना कितने समय में खत्म करना है। खाना खाते वक्त क्या बच्चे को मोबाइल दिखाना अच्छी आदत है, या स्क्रीन दिखा के खाना खिलाना अच्छी आदत है? तो ये सारी चीजें इस उम्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पहले 1-2 साल होते हैं जिंदगी के, ये डिसाइड करते हैं लाइफ लॉन्ग की हैबिट्स डाइट की कैसी होंगी। ओवर फीडिंग, ओबेसिटी जो होती है वो अगर हम कई कई बार देखते हैं कि जो खास करके कुछ एडवर्टीजमेंट्स या फिर किसी चीज की वजह से प्लम्प बच्चे या फिर जो बहुत फैटी बच्चे होते हैं वो बहुत क्यूट लोगों को लगते हैं या फिर बहुत अच्छे दिखते हैं, बट ध्यान रहे कि ओबीस बच्चे आगे जाके ओबीस अडल्ट बनते हैं। इट इज नॉट कि ओबीस बेबी फैट होता है और वो बाद में चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। सो ओबीस जो बच्चे होते हैं, सो देयरफॉर जबरदस्ती खिला के या फिर बहुत सारी शुगरी चीजें या बहुत सारी हाई कैलोरी वाली चीजें खिला के बच्चे को ओबिसिटी करवाना, ये आपकी ग्रोथ को टेम्परेरीली ड्राइव कर सकता है। हो सकता है कि थोड़े ओबीस बच्चे थोड़े बाकी बच्चों से थोड़े लंबे दिखे, बट वो अनहेल्दी होने का उनको रिस्क होता है व्हेन दे ग्रो अप एंड व्हेन दे ग्रो इनटू अडल्टहुड। जो डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि अगर आप ओवर फीडिंग कर रहे हैं, नमक चीनी ज़्यादा खिला रहे हैं, देखिए जितने भी आपके
जंक फूड हैं या इस तरह की जो ल्यूक्रेटिव चीज़ें, उनमें सब में सॉल्ट की मात्रा एज प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा है या शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो आपके बच्चों को आगे चल के उन्हें लाइफ स्टाइल डिसीज देने वाले हैं। वो आपके बच्चों का ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे जब वो 15-16 साल के होंगे, या उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और कुछ बच्चों को अब शुगर भी होने लगी है। डॉक्टर गणेश, कितना आप शुगर के पेशेंट देख पाते हैं जो लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहे हैं बच्चों को? हाँ, एक्चुअली पिछले कई सालों में ये देखा जा रहा है कि जो अडल्ट वाली बच्चों बड़े लोगों वाली डायबिटीज जो है, टाइप 2 डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं, ये अक्सर अब एडोलेसेंस में, मतलब किशोरावस्था में भी देखी जा रही है। तो लगभग अगर हम 100 बच्चे ले डायबिटीज के, तो 8 से 10% बच्चे ऐसे हैं जिनको की टाइप 2 डायबिटीज, जिनको की जेनेटिकली, मतलब फैमिली हिस्ट्री रहने की वजह से या मोटापे या खराब खान पान की वजह से डायबिटीज हो रही है। और ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये बच्चे की ओवरऑल जो हेल्थ होती है, मतलब टाइप 2 डायबिटीज के साथ साथ बीपी, कोलेस्ट्रॉल और कम उम्र में हार्ट अटैक होना, ये हम अक्सर देखते हैं कि 25 साल की उम्र में, 30, 32 साल, 35 साल की उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम्स लोगों को होने लगी है। और ये सारा इस वजह से हो रहा है कि हमारी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी की आदतें जो है वो चेंज हो रही है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि शुरू में 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक बहुत स्ट्रिक्ट रहें, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना। एक हाई चेयर का कॉन्सेप्ट है, आप हाई चेयर पे बच्चे को रखें और बेबी लेट फीडिंग करें, आप खुद खिलाने की चेष्टा ना करें, जिससे बच्चा खुद डिसाइड करेगा। और देखिए, जब वो शुरू शुरू में खाना शुरू करेगा तो इट इज़ गोइंग टू बी मैसी, थोड़ा गिराएगा, थोड़ा अपने कपड़े खराब करेगा, बट ग्रेजुअली 2-3 वीक्स के अंदर वो खुद खाना सीख जाएगा, और उसके लिए खाना बहुत सरल भी होगा, और उसकी ग्रोथ भी उससे दिखाई देगी। जनरली आप जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, दो रेगुलर कंसर्न है, इसको भूख नहीं लगती और इसकी ग्रोथ नहीं होती। तो डॉक्टर साहब ने बताया, ग्रोथ देखने के लिए ग्रोथ चार्ट एक सबसे अच्छा टूल है और सबसे सिंपल टूल है। आप सब बच्चों के डॉक्टर के जाते ही आप उनका अपना ग्रोथ चार्ट बनवाएं और उसको रेगुलर रेगुलर मॉनिटर करें। शुरू में 1 महीने में, 2 महीने में, जब भी जा रहे हैं आप मॉनिटर करें। उसमें अगर वो जिस लाइन पे उसकी ग्रोथ चल रही है, अगर उस लाइन से ग्रोथ टूट जाती है, अगर 1-2 परसेंटाइल टूटती है कोई बात नहीं, अगर सिग्निफिकेंट टूटने लगी तो आपको तुरंत अलर्ट होना चाहिए और डॉक्टर आपके टेस्ट कराएंगे। तो माल न्यूट्रिशन है एज सच, वो हमारी जो बॉडी है वाइटल ऑर्गन्स को सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई करती है, न्यूट्रिशन देती है। तो आपको हेड की ग्रोथ कमजोर बच्चों की भी बहुत अच्छी दिखाई देगी, उनका सिर का साइज प्रिजर्व रहता है, बट हाथ पैर उनके पतले दुबले हो जाते हैं। पहले उनका वेट घटता है, फिर उनकी हाइट घटती है, और फिर ओवरऑल ग्रोथ पे उनकी फर्क पड़ने लगता है। तो हम अगर ग्रोथ चार्ट पे अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इस बच्चे की कुछ टेस्ट कराए जाएं, या उस टेस्ट को या उसको जनरल तरीके से ट्रीट करा जाए। डॉक्टर गणेश, एक आजकल रिकेट्स के बहुत केस आने लगे हैं जो बच्चे की हाइट को प्रभावित करते हैं। तो ये रिकेट्स की क्या कारण है छोटे बच्चों में, खासकर 6 मंथ 8 मंथ वालों में, और कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है? सो रिकेट्स ये एक बोन्स की प्रॉब्लम है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स विटामिन डी या कैल्शियम की, और या फिर दोनों की इकट्ठा कमी से हो जाती है। और कुछ बहुत कम केसेस में ये किसी और लिवर की, किडनी की या कुछ पैदाइशी बीमारियों की वजह से भी रिकेट्स हो सकता है, बट मेजॉरिटी जो केसेस होती है वो विटामिन डी या कैल्शियम या दोनों की भी कमी से होता है। तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो अपनी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके इंडिया में बहुत सारी महिलाएं इंडोर रहती है, उनका सनलाइट एक्सपोजर अच्छा नहीं होता है, तो इंडिया में प्रेग्नेंट लेडीज में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है, बहुत सारी जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हमारी पीडियाट्रिक एंडोक्राइन सोसाइटी है या फिर इंटरनेशनली, कि पहले साल के अंदर, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, बच्चे को 400 यूनिट ऑफ विटामिन डी एवरी डे एज अ विटामिन डी ड्रॉप दिया जाता है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। एंड उसके बाद से हमें आइडियली आइडियली हमें विटामिन डी मिलता है सनलाइट एक्सपोजर से। सो जितना हो सके हमें डे टाइम सनलाइट एक्सपोजर जो है एनकरेज करना चाहिए बच्चों में। आजकल कुछ मिल्क वगैरह आते हैं जिसमें विटामिन डी थोड़ा बहुत फोर्टिफाइड होता है, इवन दैट कैन बी वन ऑफ द वे। एंड अगर आपके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए, जैसे सनलाइट एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, कुछ बच्चों में सेरेब्रल पॉल्सी होती है जहाँ पे उनकी एक्टिविटीज वगैरह बहुत कम होती है, जो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे बच्चों में डॉक्टरी सलाह के साथ आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं।
तो रिकेट्स की प्रॉब्लम विटामिन डी कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। इसमें बोन्स जो है बहुत नरम हो जाती है, जिसकी वजह से वो चलने या फिर रेंगने मतलब क्रॉल करने के दबाव की वजह से वो बेंड हो जाती है, और इसकी वजह से हाइट पे असर पड़ सकता है। कुछ केसेस में जहाँ पे किडनी या किसी और प्रॉब्लम की वजह से रिकेट्स हो रही हो तो उसमें भी ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। अगर इसका डायग्नोसिस बराबर हो और ट्रीटमेंट टाइम से हो तो ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। अगर बहुत सीवियर रिकेट्स है, बहुत ज्यादा हड्डियों की टेढ़ापन आ गया है, जो कि दवाई देने के साल 2 साल, साल 1.5 साल भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें कभी कभार किसी केस में ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी दिखाना पड़ सकता है। जैसे रिकेट्स का इनका इलाज हो जाता है और विटामिन डी रेगुलर दिया जाता है, तो आगे चल के इन बच्चों की हाइट सही रहती है या रुक जाती है? मेजोरिटी जो न्यूट्रिशनल रिकेट्स के बच्चे होते हैं, अगर उनको वक्त पे ट्रीटमेंट मिले और उनका इलाज सही से चले तो फिर उनके हाइट आगे जाके ठीक रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर कुछ कुछ लोग होते हैं जो सालों तक, कई सालों तक, खास करके एडोलेसेंट्स में हम देखते हैं कि मतलब एडोलेसेंट गर्ल्स में या एडोलेसेंट बॉयज में, उन्होंने 7-8 साल 10 साल मिल्क बिल्कुल ही नहीं लिया होता है, जीरो मिल्क इनटेक होता है, और विटामिन डी का भी लेवल्स बहुत कम होते हैं। ऐसे कुछ बच्चों में हाइट, अडल्ट हाइट जो है वो शॉर्ट भी रह सकती है। जो और इनके अलावा जैसे एक रिकेट्स हो गया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, और क्या मिनरल्स एंड विटामिन हैं जो बच्चों की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं? बच्चों की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब कि आपकी कैलोरी इनटेक और प्रोटीन इनटेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिक्वेट रहे। एंड अक्सर वेजिटेरियन डाइट्स में प्रोटीन इनटेक को मीट करने के लिए थोड़ा सा मतलब हमें मशक्कत करनी पड़ सकती है। खास करके मिल्क वगैरह, अगर हम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स कम ले तो प्रोटीन इनटेक और भी कम हो सकता है। बट तो वेजिटेरियन डाइट्स में प्रोटीन के सोर्सेज जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स, दालें, सोयाबीन, या फिर जो नट्स है, ऐसे कुछ सोर्सेस को रेगुलरली इंक्लूड हमें करना चाहिए। सो कैलोरीज, प्रोटीन्स, ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी जो एलिमेंट्स है आपके आपके डाइट के थ्रू आने चाहिए। सो अगर आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये चीजें हैं, तो आपको ट्रेस एलिमेंट्स जैसे कि आयरन है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है, कॉपर, सेलेनियम, सबका ही थोड़ा बहुत रोल है ग्रोथ में, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम, दीज आर द एंड जिंक, दीज आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट वी कंसीडर। तो डॉक्टर साहब, कोई जैसे कोई इंजेक्शंस वगैरह भी आते हैं जिससे बच्चे को लगा दिया जाए तो उसकी ग्रोथ, उसको लंबा कर लिया जाए? हाँ, सो अक्सर हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में सुनते हैं। सो ग्रोथ हार्मोन एक बेसिकली हमारी शरीर में बनने वाला, हमारी ब्रेन में, ब्रेन के निचले हिस्से में एक मटर के दाने जितनी रसोली होती है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन बनता है, जो कि अगेन एक हार्मोन है, तो एक जगह से दूसरी जगह संदेश ले जाने का काम करता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के ये अपनी लिवर को और हड्डियों को ग्रोथ का संदेश ये पहुंचाता है। लिवर में से IGF-1 नाम की चीज बनती है, जो कि बोन्स पे एक्ट करके बोन की लंबाई को बढ़ाने का काम करती है। तो ग्रोथ हार्मोन का हमारी ग्रोथ बढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये हम नाम से, जब नाम सुनते हैं ग्रोथ हार्मोन, तो हमें लगता है कि ग्रोथ हार्मोन किसी को भी देंगे तो उसकी लंबाई बढ़ा देंगे, बट ऐसा नहीं है। ग्रोथ हार्मोन एक 8 या 10 बीमारियां या कंडीशंस है जिनमें देने से फायदा हो सकता है। खास करके अगर इस हार्मोन की कमी है, पैदाइशी कुछ बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है, या फिर बाद में कुछ ब्रेन का इन्फेक्शन होने से, या ब्रेन को इंजुरी होने से, या रेडिएशन होने से, या फिर कुछ ट्यूमर्स वगैरह होते हैं जिनमें ग्रोथ हार्मोन की कमी हो सकती है। तो ग्रोथ हार्मोन की कमी एक लड़कियों में बहुत आम समस्या है, टर्नर सिंड्रोम नाम की, जो कि 2000 में से एक लड़की में ये पाई जा सकती है। ये क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के इम्बैलेंस की वजह से होती है, जिसमें हाइट कम रह सकती है, और हाइट कम रहने के अलावा इसमें फीमेल हॉर्मोन्स बनने में भी दिक्कत हो सकती है। सो टर्नर सिंड्रोम एक कंडीशन है। कुछ बच्चे होते हैं जो लो बर्थ वेट पैदा होते हैं। लो बर्थ वेट मतलब जिनका पैदाइशी वजन 2.5 किलो से कम है, और ऐसे बच्चों में लगभग 85% बच्चे कैचअप कर जाते हैं। कैचअप मतलब उनकी ग्रोथ नॉर्मल हो जाती है, बट 10 से 15% बच्चे जो होते हैं, ऐसे बच्चों को 4 साल की उम्र में डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पैदा लो बर्थ वेट के हुए थे, बट ये 4 साल की उम्र में जाके भी इनका हाइट जो है अभी तक पूरा कैचअप नहीं हुआ है, 3-4 साल की उम्र तक भी। तो उस स्टेज पे उनको ग्रोथ हार्मोन ट्रीटमेंट देना बहुत फायदेमंद हो सकता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको किडनी फेलियर होता है, किडनी की बीमारी होती है,
उस बच्चों में भी, उन बच्चों में भी ग्रोथ के लिए कभी बाकी सारे इलाज के बाद ग्रोथ हार्मोन का ट्रीटमेंट भी ग्रोथ के लिए दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं, कंडीशंस है, तो इसमें प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्ली, जितना अर्ली ये बीमारियां पता चल जाए, जितना जल्दी पता चल जाए, उतना ज्यादा फायदा होता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि बिल्कुल गर्ल की पीरियड्स पूरा होने के बाद या फिर हड्डियां ऑलमोस्ट जुड़ने को है, उस टाइम पे लोग आते हैं कि अब हाइट नहीं बढ़ रही है। उस टाइम पे ये ट्रीटमेंट करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रोथ चार्ट इस्तेमाल करके हम ग्रोथ की प्रॉब्लम्स का पता जल्द से जल्द लगाएं। एक और समस्या मैंने देखी है कि ग्रोथ चार्ट जब हम वैक्सीन या टीका लगाने जाते हैं तो बहुत सारे पीडियाट्रिशियन ग्रोथ चार्ट बना देते हैं, बट उसके बाद जब बच्चा 1.5 साल 2 साल का हो जाता है, जब वैक्सीनेशन की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा नहीं रहती, उस टाइम पे ग्रोथ चार्ट की आदत कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो ऐसे टाइम पे ये बहुत जरूरी है कि कम से कम 6 महीने में एक बार तो कम से कम बच्चे की हाइट और वेट चेक हो और ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट। ये बहुत जरूरी है, ये किसी भी टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ग्रोथ हार्मोन है, ये क्या महीने में एक बार लगाया जाता है, कितनी बार देना सो पड़ता ग्रोथ हार्मोन के जो इंजेक्शन होते हैं वो डेली लगते हैं। सो ये आपको इंसुलिन इंजेक्शन आपने सुना होगा, क्योंकि डायबिटीज का कोई ना कोई फैमिली मेंबर होता ही है। तो इंसुलिन का जैसे पेन के साथ एक टीका आता है जो कि स्किन में लगता है, उसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन का भी टीका आता है जो कि स्किन में लगता है। सो ये कोई बहुत ऐसे नॉर्मल वैक्सीन या फिर इंजेक्शन जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं वैसा इंजेक्शन नहीं है। इसमें मिनिमली पेनफुल इंजेक्शन है। ये डेली रात को सोते वक्त इसको हम देते हैं। और इसका रेगुलरली टाइम टू टाइम असेसमेंट करके उसका इफेक्ट या डोज या फिर ये सब देखना जरूरी होता है। है? तो अगर ये 2 साल के बच्चे को देना शुरू करते हैं तो कब तक दिया जाता है डॉक्टर साहब? सी जैसा कि मैंने बोला कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी या कोई भी जो कंडीशन है जहां से ग्रोथ हार्मोन का देके फायदा हो सकता है, जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए उतना अच्छा होता है। मेजॉरिटी केसेस में ग्रोथ कंप्लीट होने तक, जहां तक कि एडल्ट हाइट जितनी एक्सपेक्टेड हाइट है उतना पहुंचने तक, या फिर ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन देते हुए भी अगर समझो रिस्पांस बहुत कम हो गया है, अभी ग्रोथ साल में 2-3 सेंटीमीटर तक भी नहीं बढ़ रही है, तब हम ग्रोथ हार्मोन की ट्रीटमेंट को रोकते हैं। और एक पैरामीटर होता है बोन एज नाम का, जहाँ पे हम एक बाएं हाथ का एक्सरे करके जो बोन्स की ग्रोथ है वो देखते हैं। और बोन एज अगर 15-16 तक पहुंच गया है, उसके बाद फिर ग्रोथ हार्मोन देने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो मेजोरिटी केसेस में जितना हम एडिक्वेट समय के लिए ग्रोथ हार्मोन दे उतना फायदा ज्यादा होता है। तो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी अगर है, उन केसेस में इवन 25-30 सेंटीमीटर का भी फायदा मैंने देखा है। और जहाँ पे टर्नर सिंड्रोम या फिर जो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, उनमें अगर टाइमली शुरू करे तो 7-8 सेंटीमीटर का फायदा हो सकता है। मतलब जो हाइट अटेन करता है उसमें 7-8 सेंटीमीटर का इजाफा। इजाफा इजाफा हो सकता है अगर हम सही वक्त पे चालू करें ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है अगर। कि जितना चाहे लंबा कर लें आप, जो उसका पोटेंशियल है वो आप अचीव कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि इन कंडीशंस में जो एक नॉर्मल हाइट होनी चाहिए उससे भी कम हाइट एक्सपेक्टेड होती है। सो देयरफॉर हम ये चाहते हैं कि उनकी एक सोशली एक्सेप्टेबल हाइट तो बने। तो ये जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है, जेनेटिक ग्रोथ पोटेंशियल, इसे ये इसका क्या मतलब है, इसे कैसे डिसाइड करते हैं? सो 80% हमारी हाइट जेनेटिकली डिसाइडेड होती है। सो लार्जली हमारी जो पेरेंट्स की हाइट होती है, हम जब क्लिनिक में ग्रोथ प्रॉब्लम्स के लिए बच्चों को देखते हैं या फिर इन जनरल बाकी बच्चों को देखते हैं, तो फिर हम हाइट की पोटेंशियल का अंदाजा मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स की हाइट से लगाते हैं। सो हम मदर और फादर की एक्यूरेटली हाइट मेजर करते हैं। और एक उसका फॉर्मूला आता है मिड पेरेंटल हाइट कैलकुलेट करने का, जिसमें कि हम उसके हिसाब से हम इट्स नॉट एग्जैक्टली मैथमेटिकल एवरेज, उसमें हम लड़का या लड़की के हिसाब से फादर और मदर के हाइट में थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक लड़के की असेसमेंट करनी है, मेल चाइल्ड की असेसमेंट करनी है, तो उसमें मुझे मदर की हाइट लेके उसमें 13 को जोड़ना है, 13 का आंकड़ा जोड़ना है। सो मदर हाइट +13 प्लस फादर हाइट डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला मुझे उसकी जो हाइट की पोटेंशियल है उसका अंदाजा लगाता है। उसके ±6 सेंटीमीटर के अंदर उस बच्चे की एक्सपेक्टेड हाइट होती है। ये हमारा जेनेटिक पोटेंशियल है। अब इस जेनेटिक पोटेंशियल को एक चीज समझना जरूरी है कि अगर मदर या फादर कोई अबनॉर्मली शॉर्ट है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, तो फिर हमें ये ध्यान में रखना जरूरी है कि उसको कोई पैदाइशी तकलीफ हो सकती है जो कि इनहेरिटेड, जो कि मदर से या फादर से बच्चे में ट्रांसमिट हुई है। तो अगर कोई अबनॉर्मली शॉर्ट मदर या फादर है, तब उस केस में हमें डिस्पाइट ऑफ चाइल्ड बीइंग अप्रोप्रिएट फॉर मदर और फादर, उस केस में हमें फिर भी जांचें करना जरूरी पड़ सकता है। ओके। तो क्या जो जिनका जिनका ग्रोथ चार्ट पे जो ग्रो कर रहे हैं बच्चे, और एक देखा गया, बट वो एक सर्टेन लाइन से नीचे ही रहते हैं, हम्म। उनकी ग्रोथ सही चल रही होती है, जैसे
ग्रोथ चार्ट में 4-5 लाइनें होती हैं, जो नीचे की लाइन है वो उससे नीचे रहते हैं, बट अगर आप उसको उस दिन देखते हैं तो वो बहुत छोटा दिखता है, बट 6 महीने के बाद आता है तो वो उस लाइन के पैरेलल ही बढ़ रहा होता है, बट लगता छोटा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं और ये क्या इसका मैनेजमेंट है? उसमें कोई टेस्ट कराने चाहिए, कोई दवाई देनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर अगर कोई भी बच्चा ग्रोथ चार्ट में जो थर्ड या फिफ्थ सेंटाइल की लाइन होती है सबसे नीचे वाली, अगर उसके नीचे है तो उसका एक बार तो कम से कम मिनिमम बेसलाइन असेसमेंट होना चाहिए। मतलब कि क्लिनिकली बच्चे को देख लिया, एग्जामिन कर लिया डॉक्टर ने, और उसके बाद कुछ बेसलाइन टेस्ट जो है वो करना सही है। और उसके बाद अगर सारे वो टेस्ट नॉर्मल है और बच्चा बिल्कुल बॉर्डर लाइन ही शॉर्ट है, तो उसको 6 महीने या साल भर के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कितना ग्रो कर रहा है। तो एक हम कॉमन वजह देखते हैं ग्रोथ ना होने की या ग्रोथ कम लगने की। दो कॉमन वजह देखते हैं। एक होता है फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर, मतलब कि माता पिता की हाइट थोड़ी सी कम है बॉर्डर लाइन से, और उस केस में बच्चा उसी लाइन पे चल रहा है, बट जनरल पब्लिक जो है उसके हिसाब से थोड़ा शॉर्ट है। जैसा कि मैंने बोला कि मेजोरिटी केसेस में ये बॉर्डर लाइन शॉर्ट है, तभी हम इसको ये डायग्नोस कर सकते हैं। अगर बहुत नीचे है तो फिर भी हमें टेस्ट करके वजह जानना जरूरी है। दूसरा एक कंडीशन होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ एंड प्यूबर्टी। इसको सिंपल भाषा में लेट ब्लूमर, या फिर कुछ बच्चे जिनकी ग्रोथ थोड़ी लेट से होती है। हम में से कई लोगों को याद होगा कि हम बचपन में बहुत छोटे 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 थे, 10वीं 11वीं क्लास तक, और उसके बाद हमारी एकदम से हाइट बढ़ गई। तो ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। ये अक्सर ये इसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है कि अगर हम बच्चों को पूछते हैं और उसके पेरेंट्स को पूछते हैं कि क्या आपको याद है कि आपकी हाइट थोड़ी लेट बढ़ी थी, या फिर मम्मी को पूछते हैं कि क्या आपके पीरियड्स बहुत लेट हुए थे आपके दोस्तों के हिसाब से, तो वो कहते कि हाँ मुझे ऐसे याद है कि मेरी भी मम्मी बहुत बारी करती थी, या फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे, या फिर मुझे कुछ ट्रीटमेंट चली थी, या फिर इस टाइप से। तो लेकिन ये डायग्नोसिस बनने से पहले कुछ जांचें करके कुछ बीमारियां रूल आउट करना इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ एंड प्यूबर्टी या फिर फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर में, इसमें मेजोरिटी केसेस में ग्रोथ हार्मोन देने का ज्यादा फायदा नहीं होता है। और उसमें अगर प्यूबर्टी बहुत लेट हो रही है, मतलब कि 14 14 14.5 साल का लड़का हो गया फिर भी मेल हार्मोन बनने का कोई नामो निशान नहीं है, तो ऐसे केस में हम एक शॉर्ट कोर्स टेस्टोस्टेरॉन मतलब मेल हार्मोन का कोर्स करते हैं, जिसके बाद ताकि मतलब थोड़ी उसकी ग्रोथ के लिए धक्का देने का काम हम करते हैं। और ये इसके बाद इन बच्चों का थोड़ा ग्रोथ रेट भी इंप्रूव होता है और उनका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है, क्योंकि 14 साल में कई बार लड़कों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके दोस्तों को सारे चेंजेस हो रहे हैं और मुझे नहीं हो रहे, तो उनका बड़ा डिप्रेशन होता है। कई बच्चों को बुली किया जाता है स्कूल में कि उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो लेकिन ये सब करने के पहले बाकी बीमारियां रूल आउट करना जरूरी है। और एक और कॉमन बीमारी है सीलिएक डिसीज, जो कि मतलब नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में बहुत कॉमनली देखी जाती है, और जिसका ग्रोथ फेल्यूर ही एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन रह सकता है। तो अगर उसमें वेट या हाइट बराबर नहीं बढ़ना, और अक्सर कुछ केसेस में थोड़ा बहुत एनीमिया या फिर आयरन की कमी पाई जा सकती है, तो ऐसे केसेस में सीलिएक डिसीज के टेस्ट करना भी जरूरी होता है। आपने एक बताया सीलिएक डिसीज, जो गेहूं के प्रोटीन की या सेंसिटिविटी है, वो आजकल नॉर्थ इंडिया के अंदर काफी देखी जा रही है। और टाइम से, क्योंकि वो बच्चे फेलियर के साथ या उन्हें खून की कमी के साथ प्रेजेंट करते हैं या दांतों की डिस्टरबेंस के साथ प्रेजेंट करते हैं, ऐसे बच्चों को कुछ टेस्ट करे जाते हैं और उनको ग्लूटेन फ्री डाइट पे रखा जाता है, तो वो बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाते हैं। डॉक्टर गणेश ने बताया कि कुछ बच्चों के अंदर सीलिएक डिसीज या ग्लूटेन सेंसिटिविटी भी हो सकती है, या कुछ और कॉमन कंडीशन है जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस। अगर आप उन बीमारियों को ट्रीट नहीं कर रहे हो ठीक से, जब आपके बच्चे को बार बार खांसी हो रही है और बार बार उसकी पसली चल रही है, आप डॉक्टर के जाते हैं, तो अगर आप उसका फिर 5 दिन का कोर्स एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि वो बीमारी क्रोनिक बीमारी है, और क्रोनिक बीमारी को क्रोनिक की तरह अगर हम ट्रीट करते हैं तो वो तभी उसका हाइट पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल, मेंटल हेल्थ सब कुछ अच्छा होगा। और अगर आप सिर्फ खांसी का इलाज करोगे, 2-4 दिन दवाई दी, फिर खांसी सही हो गई, फिर बंद कर दी, तो आप उस बच्चे के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर डॉक्टर ने बोला है कि उसको रेगुलर दिखाना है, तो उसको रेगुलर दिखाना चाहिए। तो ये भी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 10 से 15% बच्चों को एस्थमा या एस्थमा टाइप इलनेस है, जो कि उनकी ग्रोथ को अनएडुकेटली कंट्रोल होने की वजह से इन्फ्लुएंस कर देती है। और कुछ अक्सर अक्सर हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं कई बार वो ये जैसे थायराइड है, सीलियाक है, या फिर कुछ बीमारियां हैं जिसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते,
मतलब कि वो डिनायल में रहते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि हम इसकी कोई हम आयुर्वेदिक दवाई ढूंढ ले, ताकि कोई होम्योपैथिक दवाई ढूंढ ले, कोई ये इलाज कर ले वो इलाज कर ले, और ताकि ये हट जाए जड़ से। बट कुछ बीमारियां ऐसी है जो कि लाइफ लॉन्ग के लिए चलती है और उनका इलाज लाइफ लॉन्ग ही चलता है। तो इस किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी आपका सबसे बड़ा हथियार है। कि अगर आपको जानकारी सही है उस बीमारी के बारे में, तो कोई आपको गलत बहकावे में नहीं ला सकता है। और अक्सर ऐसे इमोशंस का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है कि मैं आपका ये कर दूंगा तो थायराइड की दवाई हट जाएगी, या फिर आपका गेहूं दोबारा से चालू हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो इस तरीके की हम आई एम श्योर कि डॉक्टर अनुज आप भी ये देखते होंगे ये चीजें। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को मीठी दवाई देना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं कड़वी दवाई देने वाला डॉक्टर हमारे जैसा। उनसे मैं बहुत पूछता हूँ कि भाई आप कौन सा डॉक्टर बनाओगे, तो वो कहेंगे कि हम आपके जैसा ही डॉक्टर बनाएंगे। एक बड़ा कॉमन है और ये बड़ा एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है बीमारी को समझे बिना। मैं कई बार उन्हें बताता हूँ, देखिए मैं इतने बच्चे देखता हूँ और सब बच्चों में मैं समझ भी नहीं पाता हूँ कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बच्चे बोलते नहीं हैं और उनको समझना मुश्किल भी होता है। तो इसलिए कोई एक डॉक्टर ऐसा नहीं है जो उसको कह दे सबको कि मैं इसकी थायराइड की दवाई हटा दूंगा। और जो देखिए जो विज्ञान है उसे नहीं चेंज कर सकता कोई। यही हमारा आज का मैसेज है आपको कि आप अपने डॉक्टर से जुड़े रहें और समझें। डॉक्टर गणेश, एक चीज आजकल बहुत देखी जा रही है, लड़कियों को बहुत जल्दी मेंसेस होने लगी है और उससे उनकी हाइट बढ़ने पे भी खतरा पैदा हो जाता है। तो कुछ इस बारे में भी बताइए, कैसे इस बारे में माँ ख्याल रख सकती है और क्या इसके लिए तैयारी कर सकती है। अगर उसकी लड़की को थोड़ा स्पॉटिंग हो जाए तो कैसे अप्रोच करना है कि जिससे उसकी हाइट का मैक्सिमम पोटेंशियल उस बच्चे को मिल जाए। सो अगेन इसमें प्यूबर्टी या प्यूबर्टी एक प्रोसेस है जहाँ से बच्चे बचपन से लेके अडल्टहुड की तरफ का जो जर्नी है वो कर रहे हैं, किशोरावस्था जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें खास करके ये समझना जरूरी है कि लड़कों और लड़कियों की प्यूबर्टी में क्या अंतर है। सो अक्सर लड़कियां जो है प्यूबर्टी में पहले जाती हैं, और लड़कियों में सबसे पहला बदलाव जो दिखाई देता है वो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट। और ब्रेस्ट की डेवलपमेंट शुरुआत में बस आपको हल्का सा थोड़ा नोड्यूल चेस्ट में दिखने लगेगा कि जो छोटी सी गांठ जैसा लग रहा है, छोटी सी गांठ जैसा फील हो रहा है। ये इनिशियल चेंज होता है सबसे पहले। और लड़कों का इनिशियल चेंज होता है उनकी टेस्टिस की साइज बढ़ना, जो कि अक्सर पेरेंट्स पिकअप करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई रेगुलरली ऐसे ही जाके टेस्टिस चेक नहीं करता। बट लड़कियों की केस में चेस्ट की ग्रोथ कई बार मदर्स मदर्स बहुत इंटेलिजेंट होती है, तो वो नोटिस कर लेती है ये चीज। और वो पॉइंट होता है जहाँ पे प्यूबर्टी के बारे में पूछना या क्वेश्चंस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंसेस होना मतलब कि साइकिल्स, मंथली साइकिल स्टार्ट होना, ये लड़कियों में प्यूबर्टी का एंड पॉइंट है। मतलब कि प्यूबर्टी उस टाइम पे खत्म हो गई है और उसके बाद लड़कियों का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत कम रह जाता है। सो मैक्सिमम लड़कियों की ग्रोथ तब होती है जब उनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट जस्ट स्टार्ट हो रही है, और इसको हम पीक ग्रोथ वेलोसिटी कहते हैं, जब उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट इनिशियली हो रही है। और उसके बाद जब पीरियड्स हो जाते हैं उसके बाद जो ग्रोथ वेलोसिटी होते हैं, मतलब कि बढ़ने का दर जो होता है वो कम हो जाता है। और अक्सर इंडिया में ये देखा गया कि पीरियड्स के बाद 6 से 8 सेंटीमीटर या मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक हाइट लड़कियों की बढ़ सकती है, बट हाइट स्लो डाउन हो जाती है काफी। तो इसलिए प्रॉब्लम का पता पहले लगना बहुत जरूरी है। अब जो डॉक्टर अनुज ने कहा कि अर्ली मेंसेस की जो प्रॉब्लम है, तो ये इसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी तब कहा जाता है जब लड़की में चेस्ट की ग्रोथ जो है वो 8 साल के पहले शुरू हुई हो, या फिर जस्ट 8 साल के आसपास शुरू हुई हो। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखाना जरूरी है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कुछ हॉर्मोन्स के टेस्ट और एक हाथ का एक्सरे, कभी कभार एक अल्ट्रासाउंड करके प्यूबर्टी की स्टेटस का अंदाजा लगा सकते हैं। और इनमें से कुछ प्रतिशत केसेस में प्यूबर्टी जो कि बहुत तेजी से आगे जा रही है, तेजी से जब प्यूबर्टी आगे जाती है तो हड्डियां अपनी जुड़ के हाइट रुकने का रिस्क होता है। तो अगर तेजी से हाइट बढ़ रही है और एकदम से मतलब बोन्स जो है आपकी उम्र के हिसाब से 1.5-2 साल आगे चली गई है, तो ऐसे केसेस में कभी कभार हमें टेम्परेरीली प्यूबर्टी को रोकने की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए हम जीएनआरएच एनालॉग्स नाम के ट्रीटमेंट देते हैं। ध्यान रहे कि ये सबके लिए नहीं है। जिनको नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है 9 साल के बाद, या फिर जिनको नॉर्मल टाइम पे मेंसेस हो रहे हैं, उनके लिए इसका कोई फायदा नहीं। जिनको अबनॉर्मल मतलब कि वक्त से पहले प्यूबर्टी हो रही है उसके लिए ये एक ऑप्शन है, जिसका कि अगेन मतलब हर एक जो बच्चे का इवेल्युएशन होने के बाद उनके लिए वो फायदेमंद है या नहीं है, ये देखा जा सकता है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर मैं
अपनी प्रैक्टिस में उन बच्चों में देखता हूँ जिनका पैदाइशी वजन बहुत कम था, उनमें कभी कभी अर्ली प्यूबिक एरिया में या एक्सिलरी एरिया में हेयर्स आना शुरू हो जाता है, और उनमें भी कुछ प्रतिशत केसेस में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट वक्त से पहले होती है। दूसरा एक ग्रुप है जहाँ पे ओबिसिटी, जहाँ पे आपके खाने में बहुत ज्यादा शुगर की चीजें या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदे से बनी हुई चीजें ये अगर बहुत ज्यादा है, तो भी मैं कुछ केसेस में अर्ली प्यूबर्टी के केसेस देखता हूँ। इंटरेस्टिंगली लास्ट 1 ईयर, ये कोविड वाला जो पीरियड रहा है, इस टाइम पे मैंने बहुत केसेस देखे हैं जहाँ पे प्यूबर्टी की डेवलपमेंट थोड़ा वक्त से पहले शुरू हो रही है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, आई डोंट नो कि इज इट रिलेटेड टू फूड इनटेक और लैक ऑफ आई मीन वेट गेन जो थोड़ा बहुत कुछ बच्चों में पाया गया है इस साल के दौरान। ये हो सकता है कि ट्रिगर हो। स्ट्रेस कैन बी वन ऑफ द ट्रिगर। सो दीज डिफरेंट थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। सो न्यूट्रिशन का मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्यूबर्टी की टाइमिंग भी हाइट की तरह ही जेनेटिकली भी होती है, तो अगर किसी मदर में या फिर फादर में, दोनों में से किसी में भी प्यूबर्टी थोड़ी अर्ली हुई है, तो उन बच्चों में थोड़ा सा केयरफुल रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर उनके पेरेंट्स को अगर अर्ली प्यूबर्टी आई है, वो अपने बच्चों में ध्यान बच्चों में थोड़ा सा पहले से वो उनको सुपरवाइज कर सकते हैं। एंड कई सारी चीजें जैसे प्रदूषण है, प्लास्टिक का एक्सपोजर है, ये सारी चीजें भी प्यूबर्टी के टाइमिंग में रोल प्ले कर सकती है। इसके बारे में और थोड़ा जानकारी शायद साइंस में और मिलेगी कुछ सालों बाद, बट ये भी एक चीज हो सकती है। डॉक्टर गणेश ने बताया कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट पे खास निगाह रखनी है, तो मैं उसमें एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि 7-8 साल के बच्चे तक आते आते एडिपोसिटी रिबाउंड होता है, एक फिनोमेना होता है जिससे उनके अंदर फैट बढ़ जाता है। जो बच्चा 5-6 साल की उम्र में बहुत पतला दिख रहा होता है, ज्यादातर बच्चे 8-9 साल की उम्र पे थोड़ा वेट बढ़ जाता है उनका। अगर आपको उनकी ब्रेस्ट पे डाउट है कि बच्चे की, लड़की की खासकर ब्रेस्ट डेवलप हो रही है, तो आप ब्रेस्ट पकड़ के देखें और एक्सिलरी फोल्ड, मतलब ये हाथ वाला फोल्ड पकड़ के देखें। अगर वो दोनों टिश्यू एक जैसे महसूस होते हैं, दोनों जगह का मास एक जैसा महसूस होता है, तो वो फैट है। और अगर आपको ब्रेस्ट वाले एरिया में थोड़ा ग्रिटी मास महसूस होता है, तो वो ब्रेस्ट टिश्यू है। और एक बार अपने डॉक्टर से मिलके जरूर इस बात को चेक करा लें, कहीं आपके बच्चे में प्यूबर्टी ट्रिगर तो नहीं हो रही है। और दूसरा मैसेज डॉक्टर गणेश ने बताया कि अगर वो ग्रोथ चार्ट पे मेंटेन हो रहा है बच्चा, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट के साथ साथ हो सकता है उसकी एकदम से अचानक से हाइट बढ़ गई, जिससे वो एक आपको आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत लंबा हो रहा है, बट वो एक आई वॉश हो सकता है कि पता चला वो प्यूबर्टी मेंसेस शुरू हो गई, मतलब प्यूबर्टी ही खत्म हो गई, और उसका हाइट बढ़ने का जो पोटेंशियल था, जो वो आप ले सकते थे, वो मिस हो गया। बहुत सारे पेरेंट्स 16-16 साल की लड़कियों को, 17 साल की लड़कियों को लेके आते हैं, जिन्हें मेंसेस हुए भी 4-4 5-5 साल हो गए होते हैं। तो उनको एक कंसोलेशन ही देना होता है कि जो थोड़ी बहुत हाइट बढ़ सकती है वो स्पाइन की बढ़ सकती है, आधा पौना सेंटीमीटर, या कोई हिडन डिसऑर्डर है, चाहे वो पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसीज है, चाहे थायराइड है, या सीलियक डिसीज है, या हिडन किडनी डिसीज है, वो डॉक्टर आपके बच्चे की ट्रीट कर सकता है। डॉक्टर गणेश, जरा इस तरह के भी बहुत बच्चे आते होंगे आपके पास जिनकी प्यूबर्टी कंप्लीट हो गई है, चाहे वो लड़के हैं या लड़की हैं, और वो जब तक जागते हैं, जब तक बहुत लेट हो गई होती है, और वो हाइट के लिए हम लोगों के पास आते हैं, तो आप उन्हें, उनके लिए कुछ कर सकते हैं या उन्हें कैसे समझाते हैं? सो दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक तो यह है कि कुछ इनमें से कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं, उनको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी हाइट भी ठीक ठाक होती है, बट इट इज जस्ट कि वो अपने को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं और उनको लगता है कि मतलब मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं, या फिर मेरा कजिन या मेरा ब्रदर, जैसे कि आपने पहले पेरेंट्स के बारे में बोला था, बच्चे भी अडोलेसेंस में अक्सर दूसरे किसी के साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर अपने इवेल्युएशन पे हम ये पाते हैं कि वो नॉर्मल है, तो मेनली हम ग्रोथ चार्ट को इस्तेमाल करके उनको समझाते हैं कि आप नॉर्मल हो। और कई बार उस बच्चे के लिए साइकोलॉजिकली ये डॉक्टर के मुंह से सुनना कि मैं नॉर्मल हूँ, ये बहुत बड़ा काम करता है। तो एक तो हो गया ये ग्रुप। दूसरा ग्रुप है जहाँ पे सच में मतलब बच्चा शॉर्ट है एक्चुअली एग्जामिनेशन पे भी, और अनफॉर्चुनेटली उसका डायग्नोसिस टाइम पे नहीं हो पाया और उसका ट्रीटमेंट में डिले हो गया। तो ऐसे टाइम पे जैसे कि आपने बोला कि हम ऐसी बीमारियों के लिए जांचें करते हैं जिसका हाइट के अलावा भी बाकी बच्चे की हेल्थ पे असर बुरा पड़ सकता है, जैसे कि सीलियक है, थायराइड है, एक रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस नाम की बीमारी होती है। ऐसी कुछ बीमारियों के लिए हम जांचें करते हैं। अब इन बच्चों में एक बार आपकी बोन्स अगर जुड़ चुकी है, हड्डियां अगर आपकी जुड़ चुकी हैं, उस टाइम के बाद ग्रोथ हार्मोन देने का कोई फायदा नहीं है। तो इट इज
देयर इज नो पॉइंट कि उसमें हम पैसा जाया करें, क्योंकि उसका ज्यादा कोई एक बोन्स अगर कंप्लीटली जुड़ चुकी है उसके बाद ग्रोथ हार्मोन देने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम जनरली न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी को एम्फेसाइज करते हैं, और जैसा कि आपने बोला कि थोड़ी बहुत जो स्पाइन की ग्रोथ होती है उस पर हम होप करते हैं। सेकेंडली, हम काउंसल करने की कोशिश करते हैं इन डिफरेंट वेज बाय टेलिंग देम अबाउट एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट पीपल, बिकॉज हाइट एक पर से एक मतलब कुछ केसेस में ये मेडिकल प्रॉब्लम है, बट ज्यादातर ये सोशल प्रॉब्लम। तो हाइट का बहुत सारी स्टडीज में हैप्पीनेस या लॉन्ग टर्म, मतलब आपको आगे जाके उस स्टेज पे हाँ बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस या लॉन्ग टर्म सक्सेस के साथ ज्यादा कोई ऐसे कोरिलेशन नहीं। अगर आप देखते हो कि ज्यादातर एक्टर्स या फिर ज्यादातर स्पोर्ट्स पीपल, स्पोर्ट्समैन वगैरह जो इंडिया में भी सक्सेसफुल रहे हैं, उनकी हाइट कोई बहुत लंबी है ऐसा नहीं है। बट यस, आई मीन एवरीबडी डिजायर्स टू बी ऑफ अ डिसेंट हाइट। एक और ऑप्शन होता है कि हम कुछ केसेस में वी कैन यूज a little customized shoes और little so footwear को हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे कि सोशली अपेरेंट मतलब हाइट जो है वो थोड़ी सी बेटर दिखने लगे। सो ऐसे सिंपल तरीके होते हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, जैसे एक हमारे सुपर स्टार हैं जिनकी चुलबुल पांडे, वो भी ऐसी कुछ चीजें पहनते हैं। और बट हाइट देखिए, हमारे जो जो डॉक्टर गणेश ने बताया, गावस्कर को कभी सुपर क्लास बैट्समैन बनने में कोई दिक्कत नहीं आई हाइट की वजह से। तो ये आपका मोटिवेशन लेवल है, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। हमारे कंट्री में एवरेज हाइट क्योंकि कम है तो हम हाइट को लेके बहुत वरी करते हैं। अब यूएसए के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हाइट 1-2 इंच ऊपर नीचे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट द हाइट। बट हमारे यहाँ हाइट क्योंकि काफ़ी एवरेज हाइट कम है, एंड देयर आर डिफरेंस ऑल्सो। जैसे नॉर्थ इंडिया है, यहाँ जाट पॉपुलेशन बहुत है, उन लोगों की बहुत अच्छी हाइट है। अब उनके साथ जो और काउंटर पार्ट बच्चे पढ़ रहे होते हैं जो अदर रेस के हैं, अदर कास्ट के हैं, उनकी हाइट वैसी नहीं होती, तो उनके पेरेंट्स बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये समझना होगा कि हर बच्चे का एक जेनेटिक पोटेंशियल है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो हाइट को डिसाइड करते हैं। आपके हाथ में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, तीन बल्कि, बच्चे को प्यार करना, उसको इमोशनल सपोर्ट देना, सेकंड उसका ग्रोथ चार्ट मेंटेन करना, और उसका अच्छा न्यूट्रिशन मेंटेन करना। और अगर उसको कोई क्रोनिक डिसऑर्डर है तो उस क्रोनिक डिसऑर्डर को आप मेंटेन करके चलें। जनरली मैंने देखा है अस्थमा को ट्रीट करने में, या ग्लूटेन सेंसिटिविटी को ट्रीट करने में, या पर से रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करने में, पेरेंट्स सिर्फ सिम्टम्स पे ध्यान रखते हैं, और जैसे ही सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं वो सोचते हैं जो बर्निंग फर्नेस है वो शांत हो गई, उन्हें बीमारी से इतना मतलब नहीं होता। और ये हाइट के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक है, जिसमें हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, या जब फिर आप दोबारा हमसे मिलते हैं तो हम बहुत लेट हो चुके होते हैं। डॉक्टर गणेश, कोई और, आपने बहुत ही अच्छा समझाया ग्रोथ के बारे में, कोई और मैसेज जो आप हमारे लोगों को देना चाहेंगे जिससे सबके बच्चों की हाइट अच्छी हो? आई थिंक कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाइट की जो प्रोसेस है ये पेट के अंदर से शुरू होती है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी जो है उसका न्यूट्रिशन अच्छा रहना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सेकंड स्टेप है ब्रेस्ट फीडिंग। थर्ड स्टेप है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो होती है, सॉलिड्स जो अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो हम सिस्टमैटिकली और उस पर मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज और ट्रेनिंग के साथ हम उसको करें। एंड इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, सिंपल सिंपल आपके घर पे बनने वाली चीजें ही है जो दी जा सकती है। एंड देन ऑब्वियसली राइट न्यूट्रिशनल हैबिट्स, एंड दीज आर लाइक, सो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ग्रोथ न्यूट्रिशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंड इज दैट ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग मतलब कि आपके जब भी इम्यूनाइजेशन विजिट्स हो रहे हैं उसमें हाइट, वेट, हेड सर्कम्फरेंस, इम्यूनाइजेशन विजिट्स कम होने के बाद भी साल में कम से कम 2 बार हाइट और वेट को चेक करना, और ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करना, और ग्रोथ चार्ट को संभाल के रखना। ये नहीं कि हर विजिट में अलग ग्रोथ चार्ट बन रहा है, उसी ग्रोथ चार्ट पे लॉन्जिट्यूडनली हमें उसी ग्रोथ चार्ट पे फॉलो करना है। एंड अर्ली डिटेक्शन, अगर प्रॉब्लम है जितनी जल्दी पता चल जाए, जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम देखते हैं टर्नर सिंड्रोम जैसी समस्या जो कि बहुत कॉमन है, ये अक्सर 15-16 साल की उम्र में जाके पता चलती है जब पीरियड्स नहीं हो रहे लड़की के। तो उस टाइम पे फिर ग्रोथ के बारे में ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। तो अर्ली डिटेक्शन अगर प्रॉब्लम है तो उसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायग्नोसिस होने के बाद आगे की ट्रीटमेंट या फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे थायराइड हम देखते हैं, थायराइड डायग्नोस तो हो गया टाइम पे, बट
उसका ट्रीटमेंट चलते वक्त TSH कभी चेक हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी बराबर आया है, कभी हाई आया है, कभी लो आया, कभी हम दवाई दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे, तो ये एडिक्वेट ट्रीटमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और जहाँ पे इंडिकेटेड है वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का डायग्नोसिस, मतलब ग्रोथ हार्मोन की कमी या फिर बाकी जो कंडीशंस जो मीट करती है ग्रोथ हार्मोन ट्रीटमेंट के क्राइटेरिया को, उनका डायग्नोसिस टाइम पे करके उसका इलाज टाइम से होना। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का ध्यान रखना कि प्यूबर्टी कब हो रही है, कब वक्त से पहले तो नहीं हो रही है, इस चीज का ध्यान रखना। और बच्चे की साइकोलॉजी, मतलब आपके घर का माहौल कैसा है, कितना प्यार से लोग एक दूसरे से बात करते हैं, और सब्सिक्वेंटली बच्चे के जो अलग अलग उम्र पे अलग अलग स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे आजकल स्कूल में बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर या फिर बुलिंग या फिर ये चीजें भी काफी ज्यादा तौर पे पाई गई, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकली बच्चा ठीक रहे, नींद ठीक रहे, मतलब कि स्लीप टाइम पे सोए, टाइम पे उठे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। डॉक्टर गणेश ने बताया कि अगर अच्छी नींद ले रहे हैं तो उसका ग्रोथ हार्मोन अच्छा बनेगा और बच्चे की हाइट अच्छी पिकअप होगी। तो सोने जागने का टाइम आज से सुनिश्चित करिए, ये नहीं किसी दिन 2 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 12 बजे सो रहे हैं। आप देखेंगे अगर एब्रप्टली ऐसे ही गलत टाइम पे सोएंगे जगेंगे बच्चे, तो कुछ समय बाद उनका जो नींद का पैटर्न है, जो सर्कैडियन रिदम है, वो खराब हो जाएगी और उसका ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप हर चीज को थोड़ा सा डिसिप्लिन करिए प्यार के साथ, तो बच्चों को अच्छी ग्रोथ आएगी। डॉक्टर गणेश, एक देविक भल्ला है जो पूछ रहे हैं, उनके बच्चे को थायराइड एजेनेसिस है, क्या उनके बच्चे को जो ग्रोथ पोटेंशियल वाली हाइट मिल जाएगी, प्रॉपर हाइट मिल जाएगी अगर वो ट्रीटमेंट लेते रहें? थायराइड एजेनेसिस एक कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज्म का कॉज होता है, और जहाँ पे अगर इनका ट्रीटमेंट टाइम पे चालू हुआ है और अगर बराबर चल रहा है, तो फिर इनकी हाइट में इनकी हाइट पूरी तरीके से नॉर्मल रह सकती है। बट ये जरूरी है कि TSH की लेवल जो है वो एक नॉर्मल रेंज में बनी रहे। दूसरी कंडीशन होती है एक्वायर्ड, मतलब कि एक्वायर्ड हाइपोथायरायडिज्म, जहाँ पे थायराइड की डेफिशिएंसी का पता बाद में चला है। वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें बॉडी के इम्यून सिस्टम जो है थायराइड सेल्स को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। ये प्रॉब्लम लड़कियों में थोड़ी ज्यादा कॉमन है, बट लड़कों में भी हो सकता है, और ये 4-5 साल की उम्र से आगे कभी भी डेवलप हो सकती है। और इसमें कुछ केसेस में हम ये देखते हैं कि अगर ये बहुत लेट अगर डायग्नोस हुई है, अगर बहुत देर से इसका पता चला, उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद इनमें थोड़ा सा अडल्ट हाइट में लॉस हो सकता है। तो कोई भी बीमारी अगर बहुत लंबे समय के लिए डायग्नोस ना हो और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाए, उन केसेस में हम थोड़ा बहुत हाइट का लॉस देख सकते हैं। कुछ बट इन दिविज केस आई डोंट थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम। हाँ, पेशेंट क्योंकि इसके पेरेंट कॉशियस हैं और वो हाँ, थायराइड एजेनेसिस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने थायराइड का अल्ट्रासाउंड कराया है एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट प्रॉब्लम। देखिए, जो थायराइड उसके अंदर नहीं बन रहा था वो बाहर से सप्लीमेंट करके आप कंपनसेट कर रहे हैं, तो आपका बच्चा ठीक रहेगा। ये डॉक्टर गणेश का मैसेज है। और आप डॉक्टर को रेगुलर मिलते रहिए, अगर वो 3 महीने में बुलाते हैं, 4 महीने में बुलाते हैं, तो जरूर मिलते रहिए। जो एक अनंत शर्मा पूछ रहे हैं कि कुछ सप्लीमेंट दे के क्या वो अपने बच्चे की हाइट बढ़ा सकते हैं। तो सप्लीमेंट की जहाँ तक बात है, सप्लीमेंट मेनली आपको कुछ मल्टीविटामिन जो जैसे जिंक है, आयरन है, या विटामिन डी है, और या प्रोटीन है, क्योंकि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और प्रोटीन बहुत कम है। इवन दाल खाने से भी एडिक्वेट प्रोटीन नहीं मिल पाता, तो वहाँ सप्लीमेंट कई बार यूजफुल हो जाते हैं। डॉक्टर गणेश, इस बारे में थोड़ा बताइए ऑडियंस को। सो जहाँ तक के सप्लीमेंट की बात है, आई लार्जली बिलीव कि हमें अपना जो न्यूट्रिशन है, लार्जली वी शुड मेक मैक्सिमम एफर्ट्स टू ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम आवर डाइट। एंड बाकी जो सप्लीमेंट्स है, प्रेफरेबली आपको मेडिकल एडवाइस के साथ लेनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ये बेटर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल विटामिन डी के बारे में आजकल बहुत ज्यादा बोला जाता है, विटामिन डी कभी भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए, विटामिन डी शुड बी विद अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। एंड यूजुअली कुछ एडोलेसेंट जो बच्चे किशोरावस्था में जो बच्चे जिनका सनलाइट एक्सपोजर बहुत खराब है, उनको हम विटामिन डी थोड़ा बहुत एक छोटी सी डोज में सप्लीमेंट के रूप में देते हैं। बट ये प्रिस्क्रिप्शन, मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, इसको आपको ऐसे ही खुद जाके दवाई के दुकान से कितनी भी डोज में ऐसे करके नहीं लेना है। जहाँ पे कुछ बच्चों में न्यूट्रिशन की समस्या है, वहाँ पे कुछ समय के लिए हमें उनको मल्टीविटामिन वगैरह देने पड़ सकते हैं, ताकि उनकी विटामिन की कमियां दूर हो जाए। अगर कोई स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है, जैसे आयरन की कमी है, तो 3-4 महीने के लिए उनको आयरन ट्रीटमेंट देके उसको ठीक करना पड़ सकता है। और इसके अलावा बाकी
जस्ट रैंडमली एक हेल्दी बच्चे को, एक नॉर्मली ग्रोइंग बच्चे को मल्टीविटामिन या फिर कोई ऐसे सप्लीमेंट देके उसको ऐसे कोई लंबा नहीं कर सकते। बट अगर हाँ कोई कमियां है, आपकी डाइट में प्रॉब्लम्स है, टेम्परेरीली आपको जो कमियां हैं दूर करनी है, कुछ समय के लिए मल्टीविटामिन वगैरह लेने पड़ सकते हैं। और ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि हाँ कि तो पूरा इसमें इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना चाहिए कि हाँ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आपकी हाइट को ऑप्टिमाइज कर सकती है, और एक्सरसाइज शुड बी कॉम्बिनेशन, इट शुड बी फन, इट शुड इन्वॉल्व एरोबिक एनारोबिक एक्टिविटी एज वेल एज सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस which can be yoga, सूर्य नमस्कार, और which can be some but ये लटकना वटकना कई बार पेरेंट्स को थोड़ा कुछ ज्यादा एग्जैगरेट कर देते हैं उस चीज को, कि मतलब बच्चे को वो पनिशमेंट लगने लगती है कि एक एक दो दो घंटा लटका के रखा है। ऐसा नहीं करिए, मतलब कि एज अ पार्ट ऑफ प्ले एनकरेज करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसको पनिशमेंट करके नहीं होना चाहिए। एक मिस्टर संदीप पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर पेरेंट्स की हाइट कम हो, लाइक फादर 5'6" है, मदर 5'3" है, तो जो जेनेटिक पोटेंशियल है उससे एडवांस करा जा सके बच्चे की हाइट को, उससे बेटर करा जा सके अगर शुरू से कुछ ध्यान दें या कुछ ट्रीटमेंट करें? सी इसमें दो चीजें हैं कि अब 5'6" और 5'3" ये मेल और फीमेल के लिए, इंडियन मेल फीमेल के लिए कोई शॉर्ट हाइट नहीं है, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल हाइट। सो जब नॉर्मल हाइट है तब उसमें ज्यादा ये नहीं है। बट जैसे शॉर्ट पेरेंट्स होते हैं एक्चुअली, जैसे गर्ल की हाइट सपोजिंग 4'10" या ऐसे कुछ है, 5 फीट तक भी नहीं है, और बॉय की हाइट है 5'4" के नीचे है, 5'2", 5'3" ऐसे टाइप से कुछ है। कई बार एज अ नेचर ही काइंड होता है, तो कई बार शॉर्ट पेरेंट्स के बच्चे थोड़े से टॉल रहते हैं, और बहुत एक्सेसिवली जो टॉल पेरेंट्स के बच्चे हैं वो थोड़े से, मतलब उनसे थोड़े कम रह सकते हैं, शॉर्ट थोड़े से कम हो सकते हैं। ये नेचर का रूल है एक बैलेंस रखने का। तो ये एक चीज समझना जरूरी है कि अगर आप खुद नॉर्मल हाइट के हैं, कई बार मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स को अपने अपने हाइट के बारे में कॉम्प्लेक्स रहता है, जो कि वो बच्चे पे ट्रांसमिट कर देते हैं। तो माँ तो अक्सर कहती है कि मेरे पे ना चली जाए इसकी हाइट। तो 5'3", 5'6" ये एक अच्छी हाइट है, मतलब ये इसमें कोई शॉर्ट हाइट नहीं बोलूंगा मैं इसको। बट हाँ, अगर शॉर्ट जेन्युइनली शॉर्ट पेरेंट्स है, तो उसमें पहले तो जैसे कि मैंने बोला कि कोई पैथोलॉजिकल वजह तो नहीं है, ये हम सर्च करते हैं, कोई बीमारी तो नहीं है, ये सर्च करते हैं। और अगर हाइट एक सोशली, मतलब एक जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है उससे काफी नीचे जा रही है, तो उनमें से कुछ केसेस में ग्रोथ हार्मोन का फायदा हो सकता है। क्योंकि जो इसका लबो लबाब ये है कि डॉक्टर गणेश ने हमें बताया है कि ग्रोथ जो है एक स्पॉट ग्रोथ होती है, जिसपे एक थोड़ा सा आइडिया लगता है। जो ग्रोथ वेलोसिटी होती है, मतलब 6 महीने के पीरियड के दौरान जब बच्चे को डॉक्टर ऑब्जर्व करता, ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करता, तो उसे बहुत सारे आइडिया लग इंफॉर्मेशन। जाते हैं टेस्ट करे। तो ग्रोथ चार्ट की मेंटेनेंस करिए आप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मैसेज आज आप सबके लिए ये, ग्रोथ चार्ट मेंटेन करिए अपने बच्चों का। उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सुलझ जाएंगी। मैंने देखा है मेरी क्लिनिक पे ग्रोथ चार्ट में बनवाता हूँ, और बहुत सारे पेरेंट्स जो एक एक दो दो तीन तीन साल बाद आते हैं वो पुरानी फाइल लाते नहीं है, क्योंकि वो ग्रोथ चार्ट को ना समझना चाहते हैं। और बस उनके दिमाग में एक बात ये रहती है कि कोई टॉनिक लिख दें, कोई सप्लीमेंट लिख दें, या कोई एपेटाइजर लिख दें। बट जो बेसिक है, साइंस है, उसको समझिए, हमारे साथ कॉपरेट करिए। हम आपके बच्चों को बेस्ट ग्रोथ देना चाहते हैं और वो अच्छी ग्रोथ लेंगे। और आप उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। डॉक्टर गणेश ने बहुत इतना कीमती समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गणेश, थैंक यू। और कोई आपका सवाल है तो आप आई एम द बेस्ट मॉम पे पोस्ट कीजिए, हम कोशिश करेंगे हम आपके उन सवालों का जवाब दे पाए। बट सवाल स्पेसिफिक होने चाहिए। ये इस तरह से सवाल है कि मेरे बच्चे की हाइट, मतलब हम ऐसे बिल्कुल एम्पेरिकली नहीं बता सकते। 11 साल का बच्चा है, उसकी हाइट 4 फुट 11 इंच है या 5 फुट 2 इंच है, इस तरह से जज करना बहुत मुश्किल है। हम पेरेंट्स की हाइट देखते हैं, उसके साथ ग्रोथ चार्ट बनाते हैं। उसके बाद मिड पेरेंटल हाइट, जैसे डॉक्टर गणेश ने बताया था, एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करके उसके हिसाब से उसका पोटेंशियल जज करके तब उस पर कमेंट करते हैं। तो कई बार ये भ्रम भी है आपका कि आपके बच्चे की हाइट कम है, जो कि वो नॉर्मल रेंज में फॉल कर रही है। और कई बार आप जो बच्चा पीछे चल रहा है या जिस बच्चे में स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, वो आप उसे मिस करे हुए हैं, और आप उसमें अननेसेसरी जो जो अप्रोच होनी चाहिए वो फॉलो ना करके गलत अप्रोच पे जा रहे हैं। कभी आपने अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ चले गए। अगर आपका बच्चे को थायराइड एजेनेसिस है या थायराइड नहीं बन रहा है, तो थायराइड का काम थायराइड की टैबलेट से ही चलेगा। आप उसे काइंड्स में करने की कोशिश ना करें।
एक थैंक यू डॉक्टर गणेश, फिर दोबारा आपसे जरूर मिलेंगे क्योंकि आपने बहुत ज्ञानवर्धन किया है हमारे लोगों का। एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जल्दी आपसे मैं फिर टाइम सीख करूंगा और फिर मिलते हैं। Thank थैंक you यू। so much, Anuj sir, and thank you, Ajinkya, for hosting this. थैंक यू अजिंक्य।